Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to share another subtopic, that is proto-cooperation and mutualism. This is in continuation with the very topic that is ecological interactions, and these are the subtypes of the positive ecological interactions. So far as these proto-cooperation and the mutualism is concerned, they are collectively known as the probiosis. Probiosis, it is that association between the individuals or between the organisms in which both the partners they are benefited. तो इसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट मिलता है. तो लेट अस ट्राई टू understand these two subtypes, that is proto-cooperation and the mutualism. First, we will try to understand this proto-cooperation. What is this proto-cooperation? Proto. This proto-cooperation, it is basically the interaction, or it is the association between the individuals of two different species in which both the partners or both the individuals they are benefited. But this association, it is non-obligatory. It is we can say it is facultative. It is non-obligatory. That means without this association both the organisms can live equally well without this association. ये वो एसोसिएशन होते हैं जो कि दो इंडिविजुअल्स के दरमियान होते हैं ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. तो इसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये कोई ओब्लिगेटरी, ये कोई ज़रूरी इसी एसोसिएशन नहीं है. इस एसोसिएशन के बगैर भी ये पार्टनर जिंदा रह सकते हैं, तो आराम से जिंदा रखते हैं, अच्छे मतलब अच्छे से जिंदा रह सकते हैं without this association as well. This is why this type of interaction, it is we can say it is a facultative, it is non-obligatory type of mutualism or this interaction. So let us try to clear, or let us try to understand this very particular specific type of the interactions through various examples. तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू से हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे. द फर्स्ट एग्जाम्पल we will take in this type of interaction is between the cattle and the birds. Cattle and the bird. हाँ, यहाँ पे हम मतलब cattle or bird. In this we will take the specific example of the rhinoceros. And oxpecker. This is a bird. देखो क्या होता है कि जो ये oxpeckers होते हैं, चाहे रेड बिल्ड oxpecker होगा या येलो बिल्ड oxpecker होगा, they sit on the back of the black rhinoceros and thereby picking up the mites and these parasites, thereby obtaining the food from it, and apart from that the rhinoceros he gets equally benefited, he gets relieved of these parasites. तो इस तरह इसको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, इस oxpecker को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, लेकिन इस एसोसिएशन के बगैर भी ये दोनों जिंदा रह सकते हैं. They can survive well in absence of this type of association or this type of interaction as well. तो इस तरह से हम ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे जो ये दोनों मतलब एक इंटरेक्शन दिखाते इसको हम प्रोटो कॉपरेशन कहेंगे, बिकॉज हियर द बोथ द पार्टनर्स आर गेट बेनिफिटेड. नंबर 2, द इट इज नॉट ओब्लिगेटरी. तो इस तरह की हम इंटरेक्शन को भी यहाँ पे हम प्रोटो कॉपरेशन कहेंगे. दूसरे एग्जाम्पल वी विल टेक बिटवीन द बर्ड एंड द क्रोकोडाइल. Bird and crocodile. हाँ, क्रोकोडाइल बर्ड जो होता है इसको फ्लावर बर्ड क्या है, फ्लावर PLOWER. ये जो बर्ड होता है इट जस्ट makes its way, or it just enters in the mouth of the this crocodile
where it takes the blood sucking parasites or blood sucking leeches, वहाँ पे इन पे ये फीड करता है, thereby relieving this crocodile from these leeches and in turn gets the food. तो इसको एक वहाँ पे फूड मिलता है और दूसरे वहाँ पे इसको शेल्टर भी मिलता है, एंड विजाविज जो क्रोकोडाइल है तो उसको भी रिलीफ मिलता है इन ब्लड सकिंग लीचेस से. तो यहाँ पे भी जो ये रिलेशन बनती है, इंटरेक्शन जो है, इट इज दैट ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन टाइप. तो एक और एग्जांपल, फिश एंड शिप्स living in coral reefs. Coral reefs, these are one of the fundamental or characteristic features of the coelacanths, particularly that of the hydra, which form these reefs of calcium carbonates. And जो ये coral reefs हैं, इनके वहाँ पे क्या होता है, और कोरल रीफ्स के ऊपर ये श्रिम्प्स बैठते हैं और इनके ऊपर क्या होता है, दे पोजेस दीज ब्राइट टेंटिकल्स. तो उनके ऊपर ब्राइट टेंटिकल्स होते हैं, एंड दीज ब्राइट टेंटिकल्स they attract the fishes, and these fishes come close. They also come near these coral reefs and they form a straight line, and these shrimps, they pick up the parasites over their bodies, and thereby both are getting here benefited. तो ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल है दिस प्रोटो कोऑपरेशन की. तो एक और एग्जाम्पल, हाँ, तो फिश एंड luminous insects. The deep living fish, some deep living luminous fish, they emit the light in order to attract their prey and their mates. But it is not the fishes which are emitting this light. In these fishes, they possess the special type of pockets, or there are lodged some these luminous insects. It is these luminous insects which emits the light, and this light helps these fishes in attracting their mates as well as their prey. तो इस तरह यहाँ पे भी एक कोऑपरेशन बनते हैं, इसको हम प्रोटो कोऑपरेशन कहेंगे, और दिस एसोसिएशन, दिस इज श्योरली द एग्जांपल ऑफ द प्रोटो कोऑपरेशन. तो एक और एग्जांपल हम इसमें देंगे, दैट इज एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन्स एंड ह्यूमनस. जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया होता है जिसको हम एस्चेरिचिया कोलाई भी कहते हैं, and it resides in the human intestine. There it feeds upon the chyle, that is protein part of the chyle, the protein, and converts them into amines and breaks them into the amino acids. So apart from that, this bacteria, it synthesizes this vitamin B and vitamin C. तो ये दो विटामिन को भी सेंथिसाइज करता है. जो यहाँ पे भी ये एसोसिएशन बनते हैं, इट इज द एग्जाम्पल, और इट इज ए सॉर्ट ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन. तो यहाँ पे बैक्टीरिया को शेल्टर मिलता है, तो इस तरह वहाँ पे ये प्रोटीन को ब्रेक करने में भी मदद करता है. तो these were the few examples which are pertaining to this very type of the interaction, that is the proto cooperation. Apart from that, as already I have पहले ही मैंने आपको बताया था, आज हम दो तरह की these types of these types of these ecological interactions discuss करने जा रहे हैं. One is the proto cooperation, about which we have talked a little bit. Now we will try to understand the second one, that is the mutualism. This is another type of positive interaction. That means the interaction or the association between the species, between the individuals of two different species, in which both the individuals are getting the benefits, but this is the type of association which is obligatory. It is not non-obligatory, it is obligatory. That means in absence of this
interaction either of the partners will be not able to survive. तो इस एसोसिएशन के बगैर ये दोनों जिंदा नहीं रह सकते हैं. That means it is mandatory, it is important for the survival of both these individuals or both these partners. तो यहाँ पे जो मतलब ये इंटरेक्शन होते हैं ये भी पॉजिटिव पार्ट, दोनों को बेनिफिट मिलता है, लेकिन दोनों की प्रेजेंस जरूरी है. अगर एक होगा एक नहीं होगा तो both will suffer, they will not be able to survive. तो इस तरह ये interaction is of obligatory type of positive interaction. And यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो it we will just try to understand this type of this interaction through the examples as well. तो इसको भी examples के जरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे. Let us talk about the first example, that is termites and flagellates. Termites. Termites, you know, these belong to the phylum Arthropoda. These are the insects, and they belong to the order this insecta. Insects में आते हैं termites. तो termites की क्या है मतलब क्लास है insecta, so rather they belong to the class insecta. तो ये termites जो हैं basically they basically feed upon the wood. ये wood पे feed करते हैं, but they are lacking the food digesting enzyme, that is cellulase. फिर क्या करते हैं, इनके इंटेस्टाइन में फ्लैजलेट्स रहते हैं. फ्लैजलेट्स एक सेल्यूलेस क्रिएट करते हैं, बीटा ग्लाइकोसाइडेज. यानी कि जो ये फ्लैजलेट्स होता है ये एक एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, दैट इज नोन एज बीटा ग्लाइकोसाइडेज. ये ग्लूकोसाइडेज जो है इट कन्वर्ट्स द सेल्यूलोज इनटू द शुगर्स, एंड this sugar is used by both the partners, that is flagellates as well as by the termites. तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट मिलता है. तो इस टाइप की हम इंटरैक्शन को यहाँ पे म्यूचुअलिज्म कहेंगे. एंड इट इज इम्पॉर्टेंट, अगर फ्लैजलेट्स नहीं होंगे these termites they will be not able to digest the cellulose. तो वहाँ पे डाइजेस्ट सेल्यूलोस नहीं होगा तो शुगर्स नहीं बनेंगे, तो इनको फूड नहीं मिलेगा एंड दे विल गेट डाइड. तो यहाँ पे दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. एक और एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल विच इज बिलोंगिंग टू और विच इज पर्टेनिंग टू दिस म्यूचुअलिज्म, दैट इज बिटवीन द ruminants and microorganisms. Ruminants and microorganisms. देखो, और जो जहाँ तक so far as these ruminants are concerned, these are the chew killing, these are cud chewing, these cattle. These includes the cows, buffaloes, sheep, etc. Basically, they show the phenomena of regurgitation or the this cud chewing. तो इनके अंदर क्या होता है, जो ये रूमिनेंट्स, इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्टोमक होता है. इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, लाइक उसमें होता है र्यूमेन होता है, उसमें होता है रेटिकुलम होता है, ओमेसम होता है, एबोमेसम होता है. These are the various parts, or these are the 4 parts of this compound stomach which are present in these ruminants. That means the cattle which are showing the process, or which are just showing this phenomena of rumination or cud chewing. तो इस दौरान क्या होते हैं कि जो इसका पहला पार्ट होता है, इसके अंदर एक स्टोमक के अंदर एक पार्ट, उसको र्यूमेन कहते हैं. र्यूमेन के अंदर क्या रहते हैं, इसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, लाइक वहाँ पे रिमोकोकस होते हैं. र्यूमिकोकस जो होते हैं ना, ये बैक्टीरिया होते हैं. बेसिकली दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द सेल्यूलोसिस. तो वहाँ पे ये इनको मदद करते हैं इसको डाइजेशन में. तो यहाँ पे इस बैक्टीरिया को बिल्कुल शेल्टर मिलता है, फूड भी मिलता है, एंड दीज इन टर्न हेल्प दिस कैटल इन ब्रेकिंग डाउन द सेल्यूलोस, तो डाइजेस्टिंग द सेल्यूलोस. तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस है, ये इंटरैक्शन, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द म्यूचुअलिज्म, बिकॉज बोथ आर गेटिंग benefited, and this is that type of interaction. It is obligatory, that means it is obligatory type of interaction, because here the presence of both the partners is important. Otherwise, if one among them is missing, they will not able to survive.
तो दिस इज यहाँ पे भी हम कहेंगे इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एंड इट इज़ एन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस वेरी म्यूचुअलिज्म. तो another example, if you talk about another example, that is sea anemones and hermit crab. Sea anemones and hermit crabs. ये भी दो डिफरेंट अलग अलग स्पीशीज है. दिस इंडिविजुअल इट बिलोंग्स टू द सिलेंट्रेट्स एंड इट बिलोंग्स टू द hermit crabs, they belongs to the arthropoda. तो यहाँ पे बेसिकली जो hermit crab होता है it lives in the molluscan shell. ये molluscan shell के अंदर रहता है this hermit crab. लेकिन इस दौरान ये क्या करता है, तो यहाँ पे जो सी एनिमल ये भी इस शैल के नजदीक रहता है. देखो यहाँ पे फिर क्या होता है, तो ये जो हर्मिट क्रैब है ये इस सी एनिमल को मतलब उठाता है और इसके ऊपर बिठाता है. मतलब जो ये शेल होता है मोलस्किन शेल के ऊपर इसको ये बिठाता है ऐसे. तो इस तरह क्या होता है कि जो ये यहाँ पे ये एनिमल होते हैं इनके ऊपर दे possess the special type of the these tentacles. These are known as a nido. They possess special type of cells, that is nidoblasts or these nematocystis इनके अंदर होते हैं, या इनके अंदर ऊपर वो टेंटिकल्स होते हैं. इस तरह ये इसको बचाते हैं from the attack of the enemy इस hermit crab को. And in turn it has been observed that this anemone it takes the remainings which are left over by this hermit crab during its digestion, during its eating, during its nutrition. तो वहाँ पे जो pieces बचते हैं उनके ऊपर ये फीड फिर करता है. ऐसी एसोसिएशन को भी हम म्यूचुअलिज्म ही कहेंगे. तो इस तरह एक और एग्जांपल है, an important type of example is that of flowers and insects. देखो so far as this mutualism is concerned, यहाँ पे जो interaction होती है that may occur between, here will be animal mutualism, animal plant mutualism, plant mutualism. ये जो example है it is plant animal mutualism. यहाँ पे plants और animals के दरमियान एक mutualism, एक association, एक interaction होते हैं. देखो क्या होता है, ये हम देखते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं दे विजिट ऑफन टू द फ्लावर्स व्हेयर दे गेट द नेक्टर एंड द पोलन्स. वहाँ से वो नेक्टर को वहाँ से वो नेक्टर ऑब्टेन करते हैं. इसके अलावा पोलन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द पोलन्स गेट्स अटैच्ड टू देयर बॉडीज फ्रॉम दीज फ्लावर्स. तो इन फ्लावर्स इसके ऊपर जो पोलन्स होते हैं they get attached to their body, and these insects they carry these pollens from the stamens of these flower to the pistil of the another flower. तो इस तरह क्या होता है, they help in the cross pollination. When we can say they help in the cross pollination, they may also help in the germination. That means this is very important for the reproduction as well as the perpetuation of the plant. उसके जिंदा रहने के लिए उसकी मतलब reproduction, in order to increase the race of the plants, this pollination, this cross pollination plays a vital role. तो इस तरह ये insects और जो ये flowers होते हैं यहाँ पे जो ये interaction होते हैं, it is a type of mutualism. यहाँ पे भी mutualism होता है, both partners are getting benefited equally. तो यहाँ पे एक और इसके अंदर जो flowers और insects के अंदर इनकी body ऐसी divided होते हैं कि मतलब जो जहाँ से पिकअप करते हैं या जहाँ से इसके साथ ये अटैच होते हैं ये जो पोलन ग्रीन्स वो स्पेशलाइज्ड पार्ट्स होते हैं इस इंसेक्ट के ऊपर. तो फिर स्टेमेन्स से जब ये उठाते हैं, फिर जब ये पिस्टल्स में जाते हैं, तो देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ these areas where this whole process takes place. And यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो फ्लावर और इंसेक्ट के दरमियान ये रिलेशन बनते हैं, इंटरेक्शन बनते हैं, this is a plant animal type of mutualism. And तो एक और एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे, that is lichens. जहां तक इन लाइचन्स का ताल्लुक है, लाइचन्स लाइचन एक बेसिकली एक एसोसिएशन होती है बिटवीन द फंगस एंड द एल्गा.
यूजुअली ब्लू ग्रीन एल्गी के दरमियान। तो यहाँ पे फंगस होता है, जो इसका प्लांट, जो इसका मतलब ये होता है, इसको हम कहेंगे, जो यहाँ पे एल्गी उसको फाइटोबायंट कहेंगे। तो जो वो होता है दूसरा, उसको माइकोबायंट कहेंगे। ये एक ऐसे एसोसिएशन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ सिम्बियोटिक एसोसिएशन, और यहाँ पे दो मतलब एल्गी और फंजी आपस में एसोसिएटेड हैं, दे इंटरैक्ट। यहाँ पे फंगस का क्या रोल रहता है, देखो जो एल्गल पार्टनर इसमें होता है, इस लाइकन के जो एल्गल होता है, एल्गल दैट इज फाइटोबायंट, it basically synthesizes the food through the process of photosynthesis, while as the fungi partner that help us in the absorption of water and minerals from the soil, and besides it provide the protection to the algal partner. तो यहाँ पे भी जो ये association है, इसको भी हम कहेंगे, this is an example, this is very good example of this, but this is a plant, this is a plant type of this म्यूचुअलिज्म। तो एक और एग्जांपल पे हम बात करेंगे, राइजोबियम एंड ल्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम, देखो जो ये ल्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इन ल्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स पे छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, इनको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया होता है, जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, इट रिजाइड्स इन दीज रूट नोड्यूल्स। फिर यहाँ पे क्या करता है, जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको फिक्स करता है, बिकॉज द ल्यूमिनस प्लांट्स दे आर नॉट एबल टू फिक्स दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये खुद तो डायरेक्टली इसको फिक्स नहीं कर सकते। इस तरह जो ये बैक्टीरिया है, दे फिक्स दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अमोनिया or ammonium ions, which are later on converted into the amino acids, and these amino acids are then used for the formation of the proteins. तो इस तरह यहाँ पे इनको ये पिकअप करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे फिर क्या मिलता है इस बैक्टीरिया को, इट जस्ट फाइंड्स द फ्लेस, इसको यहाँ पे शेल्टर मिलता है बैक्टीरिया को, इस राइजोबियम को। तो इस तरह, और इसको फूड भी मिलता है, इसको वाटर भी मिलता है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। लेकिन ये एक इसकी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है टू द प्लांट, इस प्लांट के लिए। तो एंड द प्लांट इज एबल टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। तो यहाँ पे भी जो ये एसोसिएशन है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, एक और एग्जाम्पल है इसमें, जहाँ पे ये जिस क्या कहे मैंने, एक मतलब एजोला, जिसको कहते हैं ना एनाबीना एंड एजोला, एक वाटर फर्न के दरमियान, इनके दरमियान एनाबीना एंड एजोला के दरमियान भी एक रिलेशन, जिसको हम म्यूचुअलिज्म भी कहेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, उसको हम माइकोराइजा कहेंगे। माइकोराइजा एक ऐसी किस्म की एसोसिएशन होती है और इंटरैक्शन और म्यूचुअलिज्म है, जहाँ पे दो पार्टनर्स होते हैं। एक होता है, इसके अंदर जो एक पार्टनर, इट इज बिटवीन द सॉइल फंगस एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स लाइक पाइनस, लाइक कोनिफर्स। मतलब अगर हम एग्जांपल इसमें पाइनस की देंगे, जो पाइनस के रूट्स होते हैं और वहाँ पे सॉइल फंगस जो होता है, इसके दरमियान जो एक इंटरेक्शन बनती है, इसको हम माइकोराइजा कहेंगे। तो यहाँ पे ये फंगस जो है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, एंड इट इटसेल्फ गेट्स, एक तो शेल्टर वहाँ पे इसको मिलता है और फूड भी मिलता है। तो इस तरह यहाँ पे ये भी एक, इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ दिस म्यूचुअलिज्म। एंड दिस इज ऑल अबाउट these two subtypes, that is, one is protocooperation and another is mutualism, which are collectively known as probiosis। तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट मिलता है, इन शॉर्ट वी कैन से। तो प्रोटोकॉपरेशन में भी मतलब दोनों को बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन दैट इज नॉन ओब्लिगेटरी। यहाँ पे भी म्यूचुअलिज्म के अंदर भी दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट मिलता है, बट दैट इज ओब्लिगेटरी। दिस इज द क्रक्स, दिस इज द main difference between these two types of the ecological interactions, and this concludes this ecological interactions. This was regarding the interspecific interactions, and this was about the interspecific, that means between the individuals of two different species. Inshallah, in the coming topics we will try to discuss about the intraspecific ecological interaction, that is the interaction between the individuals of the same species. So for today it is all. Till then, fi amanillah.